ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗੁਪੇਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ बैक टू बैक विक्ट्रीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान। लगातार 2 शानदार जीत इंडिया की क्रिकेट टीम दी वर्ल्ड कप कैंपेन की शानदार शुरुआत। सरा जी आपका क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है, ऑल गुड सर, आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है जी, ऑल गुड। और गल जारी रहेगी। स्वागत करते हैं इस मौके के उत्ते पंकज मोंगा जी का। पंकज जी वेरी वार्म वेलकम सर, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच युद्धवीर जी, आई एम रियली गुड, थैंक यू। और बड़ी जबरदस्त गेम्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और कुछ कॉलर ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਚ। बिल्कुल जी बिल्कुल, बिग गेम ऑन सैटरडे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बड़ा मजा आएगा। और ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ वाई मीडिया विल बी लाइव ऑन लोकेशन स्टार्टिंग 4 AM in the morning। सो फर्स्ट टाइम है जी इन वाई मीडिया हिस्टरी कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂਜੂਲੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਐਟ 4 AM in the morning, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਜੀ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 4 AM in the morning ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ PK ਸੱਭਰਵਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PK ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। PK ਜੀ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, थैंक यू वेरी मच युद्धवीर जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स जी। युद्धवीर जी ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਟੇਕਿੰਗ ਕਾਲਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6472728182। ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ईयर मेरा डायरेक्ट नंबर 6472728182 जी। PK जी विल स्टार्ट विद यू ओपनिंग स्टेटमेंट। इतने बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रैम्पटन ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਲੈਨਰ ਦੀ ਮੈਰੀਲਾ ਪੈਲਰੋਮੋ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡਲੌਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਂਡਲੌਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋਏ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਮ 1 January 2024। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨੰਬਰ 2 ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਲੈਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਸਰਨ ਅਗੇਨ ਫॉर द ਫਿਊਚਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਮ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। युद्धवीर जी ठीक है जी। पंकज जी यूरोपीय स्टेटमेंट ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਕਨੋਮੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਯੁद्धਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। IMF ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਰਹੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਮਾਰਜਨ ਫॉर ਪੋਲਿਸੀ ਐਰਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਘੱਟ ਐਰਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਮੇਜਰ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ ਜੀ 64,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਵੇਗਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਉਹ ਰੁਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੌਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸਟੋਰੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਸੋ ਹੈਡਲਾਈਨ 64,000 ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਟੋਰੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੈਕਟਰ ਚ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਹੁਣ ਕਾਲਜਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜੌਬ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਵੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, ठीक है। अगली कॉल बताएंगे जी। गिरीश जी तुसी ऑन दे नेक्स्ट कॉल जी। हेलो नमस्कार जी सबको जी। मोगा साहब नमस्ते। तो यहीं से चालू करते हैं मोगा साहब। ये जो नंबर है आपके गले से उतरते हैं ये जी क्या? ये जो 64,000 निकली है नेट। हाँ, बिल्कुल। क्यों गले से क्यों नहीं उतरेंगे सर? क्योंकि आप
आप अगर पूरी रिपोर्ट पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्रिएट हुई है। बेसिकली इसमें फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ 15,000 ही है, 16,000 ही है। बाकी सारी पार्ट टाइम हुई है, लगभग 48,000 के करीब पार्ट टाइम जॉब क्रिएट हुई है। और दूसरी चीज है, मैं बार बार अपनी हेडलाइंस में जो मैं बोल रहा था, जो मेरी फर्स्ट जो थी उसमें मैंने यही बोला था कि एजुकेशनल सर्विसेज में ज्यादा क्रिएट हुई है। 66,000 सिर्फ एजुकेशन में क्रिएट हुई है। इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, रेंटल, लीजिंग -20% है, कंस्ट्रक्शन -18,000 है, इंफॉर्मेशन, कल्चर, रिक्रिएशन -12,000 है। सो ये सारी जो जॉब्स क्रिएट हुई हैं बेसिकली सितंबर में क्रिएट इसलिए हुई हैं क्योंकि अभी कॉलेजेस स्टार्ट हुए हैं सर। इंटरनेशनल, आप कितने दिनों से हम बात कर रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, इनको पढ़ाएगा कौन? उनके लिए टीचर्स तो चाहिए ना। वो टीचर्स की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में भी जो भी हुई है। तो ये बेसिकली वो जॉब ज्यादा क्रिएट हुई है, अदरवाइज बाकी जॉब्स नीचे गई। जी ठीक है जी। तो इसका मतलब तो फिर रेट, इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, फिर तो रेट बढ़ेगा ही। नहीं, इकोनॉमी बढ़िया कहाँ चल रही है? अच्छा, तो कह रहा हूँ इकोनॉमी तो सारी स्लो डाउन हुई पड़ी है। हम तो वही ना स्लो डाउन में पड़े। इसी के तो सवाल पूछा कि गले से उतर नहीं रही ना बात। नहीं, मैं तभी तो आपको एक्सप्लेन किया है सर। सिर्फ जॉब जो क्रिएट हुई है वो टीचर्स की क्रिएट हुई, एजुकेशनल सर्विसेज में हुई है। मतलब कॉलेजेस जो है, इस तरह की चीजें हैं, आसपास इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, सिर्फ उसमें ज्यादा क्रिएट हुई, बाकी जगह पे क्रिएट नहीं हुई। अच्छा, दूसरा जो ये हम लोग ये LMIA इशू करते हैं, ये भी इसमें गिनती में आते हैं ये लोग? सर जो भी जॉब्स क्रिएट होती है, अगर नई जॉब्स कोई क्रिएट हुई है, LMIA इशू होना इज डिफरेंट थिंग देन जॉब क्रिएट। अगर आपको किसी को ने जॉब दी है और आपका डेटा है उसमें, तो वो जॉब क्रिएशन में आएगा यार। हाँ, तो आया ना। तो यही तो अगर हम जबरदस्ती क्रिएट करे जाएंगे LMIA, तो उसमें भी ऐड होता जाएगा ना ये तो। सर मैं एक बार छोटी सी पूछ सकता हूँ, छोटी सी, सॉरी मोगरा, ये जबरदस्ती क्रिएट करके इसको मतलब जॉब आपका मतलब है एक्चुअली नहीं मिल रही, पेपरों में मिल रही है, आपका मतलब कहने का ये? मुझे तो यही थोड़ा सा लगता है। चलो ठीक है, जैसा मर्जी को सोचे सर। गिरीश जी उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब आप उस कुर्सी पे बैठे हो तो आपसे थोड़ा बोलना मुश्किल है। नहीं, आपको मैंने 3 बार समझा दी, 2 बार समझाया, फिर भी आप ये कह रहे हो कि जॉब्स आपके गले से नहीं उतर रही है। मैं क्या कह सकता हूँ? ओके, ठीक है, दैट्स ओके। अच्छा सफीर साहब, हम बात कर रहे थे पहले, देखिए ये घरों के प्राइस कम होते थे तो कमीशन जो भी था, है ना, अब थोड़ा घरों के दाम भी बढ़ गए हैं, तो भी वो 2.5 और 2%, 4.5% हो जाता है। अब ये भी गलत कह रही है आपने सर। आपको मेरे ख्याल से गिरीश जी, डोंट टेक इट रॉन्ग, कौन कह रहा है कि ये 4.5% है? मतलब कि आप बोर्ड सड़कों में लगे देखते हो जगह जगह, रियल्टर कह रहा है 1% में आई विल सेल। मतलब ये तो नेगोशिएशन है ना, सीधी लेन देन है, थोड़े ना। अभी देखो रीमेक्स के ऊपर जो सूट फाइल और 2-3 ब्रोकरेज का हुआ है कि मिली भगत है, उन्होंने उसके ऊपर स्टे मांगा और आगे जा रहे हैं लोग, तो ये तो है ही नहीं ना सर। हमारे को 4.5% आप ले आओ, 4% में हमारे पास उससे भी कम ले आते हैं। डिपेंड करता है कि क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या दिख रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन दूसरी तरफ तो 2.5% है, सुना है वो 2.5 का 3 भी लोग कहाँ है ही नहीं ना सर। वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अब कहाँ है 2.5%? ये तो देने वाले और लेने वाले के ऊपर है ना, ये तो नेगोशिएशन है सर। रूल थोड़ा है कि 2.5 ही देना है। अब आप अगर मान लो आगे चले जाते हैं, ये लंदन की तरफ चले जाते हैं, हमारे ओंटारियो में, वहाँ पर 2% है, उसमें भी नेगोशिएशन होकर 1.5% रह जाता है। बड़ी प्रॉपर्टी को 1% है। अभी मेरी किसी प्रॉपर्टी की बात चल रही है, 12 मिलियन की है वो, उसके ऊपर जो कमीशन चल रही है वो 1% की बात चल रही है। ये तो एक मिथ है कि किसी ने कह दिया जी 4.5% है, 4% है। नहीं, ये लेना और देना। प्लस एक बात और सर, गिरीश जी, मैं एक बात और बताता हूँ, इसमें यह भी डिपेंड करता है कि आप अपने रियल्टर से कितना पैसा खर्च करवाना चाहते हो ऑन एडवर्टाइजमेंट। मान लो आप उसको कहते हो जी मैं तो 1% दूंगा, 8 लाख की प्रॉपर्टी है, और उसको मान लीजिए आप 8,000 देते हो, और उसको कहते हो जी रेडियो में भी आ जा, टीवी में भी आ जा, न्यूज़पेपर में भी आ जा और मुझे रिपोर्ट दे दे, वो कोई लेगा ही नहीं आपसे। वो कहेगा जी जितना को डालोगे उतना मीठा, उसके लिए तो मुझे 2% चाहिए। आप मेरे से अगर मार्केटिंग में खर्च करवाओगे इतना ज्यादा पैसा, मेरी मार्केटिंग का पैकेज ये है, इस पैकेज के अंदर मैं आपसे 1.5% तक ले लेता हूँ। लेकिन आप कहते हो जी इसके अंदर ये भी ऐड कर दो। अब आप युद्धवीर जी से पूछ लो कितने हम लोग इनको टीवी में आने के लिए, और इनका आगे से कितना जबरदस्त मोटा खर्चा है, इनसे भी पूछ लो अगर जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं। अगर खर्चा करवाओगे तो क्वेश्चन वो रियल्टर की जेब में तो जा नहीं रहा। नहीं देखो सर, लेकिन आप कहते हैं ना कि अगर वो 2.5% नहीं देंगे तो दूसरा रियल्टर घर दिखाने नहीं लाएगा,
हेलो सर, ये मैंने कहा ना नहीं लाएगा, राइट? ये तो आपकी नेगोशिएशन, यही तो कंपटीशन है ना, डिमांड एंड सप्लाई। ये रियल्टर थोड़ा ना कह रहा है कि मुझे 2.5 ही चाहिए। रियल्टर कह रहा है ठीक है जी, मैं दूसरे को 1% दे देता हूँ, अब वो दिखाने आए ना आए उसकी मर्जी है। पर एक बात और भी मैं बता दूं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट, एथिक्स नाम की भी कोई चीज है। मैंने कहा दूसरा लेटर दिखाने नहीं आएगा, मैंने ये तो नहीं कहा कि 100% दिखाने नहीं आएगा, ठीक है ना? वो बात याद आती है ना सर उसकी, वो हमारे जो इंदौरी है, राहत इंदौरी साहब की बड़ी अच्छी कपिल शो में एक बार आया था, छोटा सा अंडर लाइटर साइड बता रहा हूँ। उसने कहा कि मैंने एक बार कहा कि सरकार चोर है, तो आगे पुलिस ने पकड़ लिया उसको, तूने कहा सरकार चोर है, तो कहता जी मैंने कब कहा कि कौन सी सरकार चोर है, मैंने तो सिर्फ ये कहा सरकार चोर है, किसी कंट्री की हो सकती है। वो पुलिस वाला आगे से कहता है जी तुम्हें क्या, हमें बेवकूफ समझा होगा, तुम्हें नहीं पता, हमें नहीं पता कि कौन सी सरकार चोर है। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर एक रियल्टर 2.5% में नहीं दिखा रहा तो सारे रियल्टर चोर थोड़ी ना बॉस, उनका फर्ज बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है दिखाना, उनको सू किया जा सकता है अगर वो नहीं दिखाएगा तो। पर लोग अवॉइड करेंगे, वो भी मेजोरिटी, ये लोग बहुत कम है। ये डिपेंड करता है कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, मैं एक गंदे मन से देख रहा हूँ, एक अच्छे मन से देख रहा हूँ। अगर मैं किसी को अच्छे मन से देख रहा हूँ तो मुझे सारे अच्छे लगेंगे, गंदे मन से देखूंगा तो सारे चोर नजर आएंगे। अच्छा सर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये सुना ये ब्रैम्पटन में कुछ लीगल अपार्टमेंट का कुछ बेसमेंट का कुछ सिलसिला चला है कि वो कुछ लीगलाइज कराएंगे, रजिस्टर कराएंगे, इसकी क्या कहानी है, बस ये बता दीजिए। वो तो बहुत पुरानी चल रही थी सर, वो तो बहुत हो गया रजिस्टर कराने की, अभी थोड़ा इसको चलते हुए 4 साल हो गए। हाँ, लेकिन वो कुछ रिसेंटली कुछ खबर आई थी, इस वजह से मैं पूछ रहा था। नहीं, रजिस्टर कराने वाली बात, लीगल बन गया तो रजिस्टर हो गया, और लीगल का मतलब रजिस्टर, वो लीगल के तो बड़ी खुली छूट दे रखी है और बहुत लोगों ने फायदा उठाया इस बार। अभी भी वो बार बार कह रहे हैं इसको रजिस्टर करा लो, लीगल बना लो, क्योंकि वो छापे मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं इलीगल, जहाँ पर 10-10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक कमरे में 2-2 स्टूडेंट, 5 कमरे, घर के अंदर 10 बच्चे बैठे हुए हैं, बुरा हाल हुआ पड़ा है, जानवरों जैसा हाल हुआ पड़ा है। तो ये तो बड़ा अच्छा काम मेरे को लगता है एक तरफ से हो रहा है। ओके, थैंक यू, भाई इसको लीगल किया जाए जी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अगली कॉल में बढ़ते हैं जी, सूरज दुआ जी, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। सूरज दुआ जी, गो है। हाँ सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन पंकज मुंबई ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ क्वेश्चन ਹੈ, ਮੈਂ 2016 ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲਾਇਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਰਵਾਈਵਰਸ਼ਿਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਉਹ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਾ ਕੇ ਡੀਡ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ? मोंगा साहब मैं जवाब दिया, तुम दोगे? बिल्कुल बिल्कुल तुसी दे क्योंकि रियल एस्टेट से मुतल्लिक आ गया, मैं अपने थोड़े ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਦੇਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰ? ਨਾਂ ਮੇਰਾ सूरज जी, ऐसा हैगा कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सी थोड़ी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟ? ਨਹੀਂ, ਰੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ, ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਸਿੰਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ, ਰਾਈਟ? ਅੱਛਾ, ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅੰਦਰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗਾ? ਜੀ, ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੈਂਟ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 2015 ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸੀ, 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 2016 ਨਿਕਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। 2016 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ $1 ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ। अपने लॉयर को जरूर पूछ लेना, मैं अपना एक्सपीरियंस दस रहा सिर्फ। लेकिन अगर थोड़ी मॉर्गेज है 5 लाख तो तुम 5 लाख वैल्यू तो दिखानी पेगी, जो भी थोड़ा खर्चा होता करना ही पेगा। ऐसे हो गया निकलने वाली गल। बाकी रही कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जिस दिन तुसी बाहर आ गए, जिन्ने तो तुसी दोनों ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ,
ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰ 20 ਸਾਲ ਨਾਲ ਵੇਚੋ 20 ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਬੱਚਾ ਵੇਚੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ ਸੂਰਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ लेकिन जब तक वापस नहीं गए तब तक जो प्रॉफिट है उसे टैक्स देना ही पड़ेगा। फिर भी 7 साल बाद दोबारा वापस जाते हो तो जितना गैप है उसे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट चल गए तो फिर दोबारा प्रिंसिपल बन गया। यस प्रिंसिपल बन गया फ्रॉम द डे यू मूव बैक अगेन, नॉट बिटवीन दोस 7-8 ईयर्स। उधर तो जरा कीमत वधी होती तो कैपिटल गेन बनेगा और दोनों का बनेगा। सर एक्चुअली सूरज जी 7 साल जी तुसी रेंटल से दी है उनके खर्चे भी कढ़े ने टैक्स, ठीक है। उन्होंने को रैकर्ड हैगा है सीआरए कोल की सो तुसी एवें नहीं कर सकते हो। नहीं सर जी मैं ना इलीगल ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਸਿਕਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ TD ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੀਕੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 13.5% ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਸ ਈਅਰ ਤੇ 3% ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਐਵਰੇਜ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਕਾਸਟਡ ਟੂ ਫਾਲ 5.3% ਦਿਸ ਈਅਰ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 0.5% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਟ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਡਾਟਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੇਲ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਟ ਮੇ ਡ੍ਰੌਪ ਅਪ ਟੂ 5%। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ। TD ਲਗਭਗ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। TD ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਉਹ 5.3 ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 5% ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਟੋਟਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ TD ਸੀਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ 2023 ਤੇ 5% ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਈਅਰ ਐਂਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 5% ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਸਾਲ। ਸਰ 4 ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 0.7% ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ GTA ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ CD ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4% ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, 5% ਜਾਏਗੀ ਥੱਲੇ। ਸੋ 5% ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ। 5% ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਕਸਅਪ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ 2 ਥਿੰਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ GTA ਦੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 5% ਤੱਕ। ਯੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਆਰ ਡਾਊਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ GTA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ GTA ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੱਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। GTA ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर PK ਸਰ, ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਇਟ ਬੈਟਰ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ GTA ਔਰ ਆਊਟਸਾਈਡ? ਨੰਬਰ 2 ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਸਟੈਕ टाउन हाउस और कॉन्डो? सर कोई थंब रूल है ही नहीं कि GTA करिए बाहर करिए। वेयर एवर मनी वर्क साढ़े को 30-32 कुछ पॉइंट्स होंगे ने जेडे कि असीं एवरी ट्यूसडे बैठने ते जेडे प्रोजेक्ट नवे आंदे ने उहदे ते असीं काम करने। सिंपल जी गल हैगी उस दे अंदर असीं देखने प्रोजेक्ट। पहली गल बिल्डर की, दूजी गल लोकेशन की। लोकेशन डजंट मीन कि अगर तुसीं कह रहे जी लंडन ओंटारियो या विंडसर नहीं, उस सिटी के अंदर लोकेशन केड़ी मेरा मतलब कहना है क्योंकि असीं प्राइस उस सिटी के हिसाब नाल चल रहे हैं ना। तुसीं ऐ नहीं कर सकते कि डाउनटाउन एंड विंडसर नो। जब असीं लोकेशन की गल कर रहे हैं तो असीं एज पर द सिटी गल कर रहे हैं कि उस सिटी के अंदर वो लोकेशन केड़ी, उसकी डिमांड कितनी है, रेंटेबिलिटी की हैगी, उसकी हिस्ट्री की सी और उसके फ्यूचर की नजर आ है, प्लस बिल्डर के नाल उसकी ड्यूरेशन कितनी लंबी है, क्या उसका प्राइस एज पर लोकेशन है कि नहीं है, प्लस सारे क्लाइंट्स
ਕਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਾਸਟਲੀਸਟ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਕਾਸਟਲੀਸਟ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ, ਸੈਕੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਕਿਆ ਹੈਗਾ 9000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ, 34 ਮਿਲੀਅਨ, 34 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਖੈਰ ਰੈਗੂਲਰ, ਇੰਨਾ ਕਾਸਟਲੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ट्रिपल A ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ कुछ प्रोजेक्ट ने विंडसर या लंदन वो बी भी नहीं आ रहे, 4 लाख होने के बावजूद भी बी कैटेगरीज भी नहीं आ रहे। इट ऑल डिपेंड्स कि उस एरिया के अंदर प्रोजेक्ट किया है, नंबर 1। नंबर 2 कह रहे हैं जी टाउन होम या कॉन्डो फिरोई गल उत्थे दी उत्थे आ जाती है। हाउ माई मनी वर्क्स, अगर मैंने टाउन होम कहता है कि मैं तुम 1.5 साल ही दे देंगा और प्राइस होता मार्केट तो 7% ज्यादा जो कि यूजली होता है, क्योंकि बिल्डर आज का प्राइस नहीं लगाता, हमेशा मेड इन प्राइस लगाता है, तो मैं कहूँगा नो। अगर वही टाउन होम अगर 6-7% फालतू लगाता है तो मैंने क्लोजिंग देता 4 साल की, आई से यस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन। मेरे को इन्ने आते ने हुण बेचारे, मेरे को हुण भी परसों भी कोई आए सी नेपाली सीगे, किसी एजेंट नूं गालां कढ रहे सीगे, मैं जानना उस एजेंट नूं, पर मैं की कमा, वो युद्धवीर जी उन्होंने 1 लाख इनकम टोटल, ठीक है, और कागज कूगज उन्होंने 20 लेंडर इधर उधर करके उन्होंने 9 लाख मॉर्गेज लैके देती। अच्छा। और घर लैके देता, और उसके बाद फिर देखो अजे उन्हें सबर नहीं किया, उन्होंने खान का उन्होंने जो कहते ना चरबी खान का दिल कर रहा है, मैं गंदे वर्ड यूज कर रहा, दोबारा उस बेचारे मिले नेपाली तिब्बतन, सॉरी तिब्बतन सीगे अपने जिन्होंने कहते ने दलाई लामा साहब के अनुयायी। उसके बाद उन्होंने क्या, तेरे को मैं 1,75,000 निकाल देता हूँ, तुम बहुत कर्जे में दब गए हो, तुम एक फ्री कंसेशन टाउन हो मैं तुम्हें बुक करके दे देता हूँ, और 1.5 साल में इसको भेज दूंगा असाइनमेंट में, तुम्हारे को मैं इसका डबल करके दे दूंगा, तुम्हारा कर्जा कम हो जाएगा। लो जी उन्होंने 1,75,000 देता। मैं हमेशा कहना होना कि असाइनमेंट पे डिपेंड ना करो, दैट इज जस्ट फॉर इमरजेंसी। और उनको ख्वाब दिखा रहा है वो एजेंट कि तुम्हारे को मैं असाइनमेंट से उसको डबल करवा दूंगा, और आज जितने में उसने बुक किया था 1 मिलियन समथिंग का, आज उतने का भी नहीं दिख रहा, 1,75,000 वो भी गया उसका। तो मुझे बताओ कि क्या वो टाउन होम ठीक रहा? ड्यूरेशन अगर उसके अंदर वो एजेंट भला मानस 4-5 साल की देता, और बड़ी उसकी याद आती है जगह जगह, बहुत मैं ये करवा दूंगा, अभी भी खुल के बोलता है असाइनमेंट में भेज दूंगा। अरे भाई कौन मना कर रहा है असाइनमेंट में भेजने के लिए? पर ये तो देखो असाइनमेंट में लॉसेस क्या है, नेगेटिव्स क्या है। जैसे मार्केट गिर जाएगी तो कैसे असाइनमेंट में बेच लोगे आप, और अगर बेच भी लोगे तो टैक्स कितना सरकार को दोगे आप, ये कुछ समझाता ही नहीं। और वो फंस गया बुरी तरीके से, रो रहे थे। और मैंने किसी जमाने में अपना एक घर गुड़गांव में बाबा क्या कोशिश हाईनेस को ही बेचा था, और मेरे पास अभी भी उनके हाथ का 5 रुपए का सिक्का मेरे पास पड़ा हुआ, जो उन्होंने उनको बयाना दिया था। आई गॉट इमोशनल, मैं गले मिला, मुझे कुछ नहीं मिला इन लोगों से, पर मैंने कहा नहीं, मैंने सिस्टम बनाया, इनकी हेल्प करो किस तरीके से, चाहे खरीदना पड़े, कुछ करना पड़े, इनको निकालो इस गन से बाहर। ये भी एक समझ लो एक किस्म से वो हो जाएगी, तब वो हो जाएगा, एक पुण्य का काम हो जाएगा। तो अब ये इनका ये जवाब है कि टाउन होम अपार्टमेंट ये कुछ भी नहीं है, हमने ये देना है कि हमारा पैसा कहाँ बेटर काम कर रहा है, बस। टाउन होम लूं, डिटैच लूं, हाई राइज लूं, लो राइज लूं, लैंड लूं, इट डजंट मैटर एट ऑल। हमारा पैसा कैसे काम कर रहा है वो हमारे पास चेकलिस्ट है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, सिंपल। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पंकज जी थोड़े लिए। हाँ जी सर, क्वेश्चन फॉर पंकज जी, इफ द चाइल्ड गोज आउट ऑफ द कंट्री टू स्टडी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेस फंड्स टू पे फॉर देयर ट्यूशन फ्रॉम योर RESP? थैंक यू। बिल्कुल जी, एक्चुअली ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ RESP ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹਰ ਕਾਲਜ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ RESP ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है जी। एट दिस पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਵੈਂਸਡੇ ਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਸਮ, PK ਜੀ PK ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ PK ਜੀ, ਇਫ ਟੈਨੈਂਟ ਲੀਵਿੰਗ अर्ली should we still get N11 signed or N9 is sufficient? Thank you. एनी दोनों एक एनी, अगर टैनेंट कहना कि मैं छड़ना है तो उसको N9 साइन कराओ, किसी हालत ही साइन कराओ, क्योंकि दे कैन कम बैक अगेन एंड ऑक्यूपाई द यूनिट। आई एम टेलिंग यू ऑलवेज, जब टैनेंट ईमेल भेजता या वर्बली कहता तो ये N9 साइन कर दे कि तू मैनू कह रहे हैं। अगर तुसी ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ N11 ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਨੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਮੈਂ N9 ਤੇ N11 ਦੋਨੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ N9 ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ N11 ਹੋ ਗਿਆ। N9 ਤੇ N11 ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਯੂ ਮਸਟ ਗੈਟ ਇਨ ਸਾਈਨ।
सिर्फ फर्क इन्ना है N9 के अंदर वो जो डेट दे रहा है उस तो पहले नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें क्या है मैं इस तरीके नहीं जावांगा, लेकिन अगर तुसी बोलते हो कि तू निकल जा तो उस तो पहले भी जा सकता है, फिर तुहानू उत्ते 1 महीने का रेंट भी देना पैंदा है। इस करके N9 इज द बेटर ऑप्शन जिसमें तुहानू एक्स्ट्रा रेंट नहीं देना पैंदा 1 महीने का, ना उस तो पहले जाके छड़ सकता है। ना तुहानू क्या जी मैं 1 जनवरी छड़ रहा तो पता चला जी तुसी आराम नाल बैठे हो, पता चले वो 1 दिसंबर में छड़ गया तो नुकसान हो गया 1 महीना तो अचानक किन्नू किराए दोगे। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू एटलीस्ट गेट साइन N9 पर फॉर योर सेफ्टी अगेन N11 भी साइन करा के रख लो जी। ठीक है जी। अच्छा पंकज जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ क्वेश्चन फॉर मोंगा सर, इज इट टाइम टू बाय कैनेडियन बैंक? और पता नहीं कि कैनेडियन बैंक की कर रहे हैं एज स्टॉक की गल कर रहे हैं जी, कैनेडियन बैंक का स्टॉक नहीं पूछ रहे हो? हाँ जी, कैनेडियन बैंक स्टॉक की गल कर रहे हैं सर। मैं बिल्कुल कोई सलाह नहीं देना चाहवांगा रेडियो ते बह के ओपन, क्योंकि ये जी चीज होती है कि अज मैं कह देवां तुहानू कि हाँ जी खरीद लो और जो कल वेचना है तो उसले तो मैं तुहानू नहीं दस रहा रेडियो ते। सो ये तुहाडा आपदा डिसीजन है या तुसी आराम नाल तुहानू समझ आंदी है तो तुसी समझदे हो स्टॉक मार्केट नू तां तुसी खरीदिया जे। मेरी तरफों कोई एडवाइस नहीं है जी किसी तरह। ठीक है पंकज जी, इस मौके के उत्ते तुसी अपना फोन नंबर पहला दे दिओ और उस तो बाद कोई अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल प्लानिंग दे विच कोई इन्वेस्टमेंट दे विच कोई भी चीज़ है जिहड़ी तुहाडीआं सर्विसेज भी हैगियां सारी डिटेल जानकारी, पहला फोन नंबर फिर जानकारी दोबारा फिर फोन नंबर। जी बिल्कुल, मेरा फोन नंबर है 6472851007 647-285-1007। जी मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हाँ। सो मेरा जो एरिया है बहुत वास्ट है। मैं इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, ये सारे मेरे एरियाज आ जाते हैं। सो इहदे किसी तरह की भी कोई भी नीड है तुहानू, चाहे वो इंश्योरेंस रिलेटेड है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, क्रिटिकल है, तुसी ट्रैवल कर रहे हो, मोर्गेज इंश्योर करना है, मोर्गेज इंश्योरेंस है, ये सारिया चीज़ों वास्ते। उस तो बाद अगर तुसी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, जिवें तुसी हुण कमा रहे हो, ठीक है, जुड़ नहीं रहा, किवें जोड़ना है, किन्ना जोड़ना है, किन्ना तुहानू चाहिदा होवेगा, की करना है, तुहाडीआं इच्छावां की ने, लाइक तुसी रिटायरमेंट तो बाद घूमना चाह रहे हो, दुनिया देखना चाह रहे हो, या तुसी सरोवर के किनारे बह के सवेरे सवेरे सिर्फ प्रेयर करना चाह रहे हो, तुहाडी मर्जी है। तो उस हिसाब नाल प्लानिंग की जाती है। दूजी तीजी चीज जिहड़ी इन्वेस्टमेंट दी आ जाती है, अगर तुसी किसी तरह की भी मार्केट च इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, चाहे वो जिवें तुहाडा RRSP है, चाहे तुहाडा नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट है, किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट तुसी करना चाह रहे हो, उन्होंने किस तरह करना है, उन्होंने अग्रेसिव जाना है, तुसी उन्होंने बैलेंस रखना चाह रहे हो, कितना तो कमाना चाह रहे हो, उस हिसाब नाल उसकी इन्वेस्टमेंट होएगी। तुसी सिक्योर रखना चाह रहे हो, सिक्योर भी रखना चाह रहे हो तो अगर ओपन अकाउंट च पे है, हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट च भी होंदे ने, उहदे च भी 4.5% मिलता है। अगर तुसी GIC च जा रहे हो तो 5.5-6% के करीब के भी रेट है ने, अगर तुसी GIC जाना चाह रहे हो। सो ये सारिया चीज़ों वास्ते तुसी मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 6472851007। थैंक यू जी। थैंक यू जी। ठीक है जी, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोजेक्ट कोई एनीथिंग जी युद्धू जी, मैं ना एक्चुअली मेरी लगभग आल्टरनेट डे मेरी बिल्डर डिनर मीटिंग या लंच मीटिंग या ब्रेकफास्ट मीटिंग या ब्रेड मीटिंग होंगी है उन्होंने नैगोशिएट करने वास्ते, क्योंकि अज वो टाइम है जिस पर बिल्डर तुहाडे पीछे है। क्योंकि क्यों असीं उन्होंने कहने जिस पर लाइनां लगियां हुई सी तो बिल्डर रेट वधा दिंदा सीगा, हुण बिल्डर दी लाइनां लगियां ते असीं उन्होंने कहने बोलो जी कितना इंसेंटिव दिंदे हो। कई बार बिल्डर की ऑफर कर दिंदा हैगा, अच्छा जी मैं तुम्हें 10,000 फालतू दे देना कमीशन। नेवर, आई सजेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करना अपने सारे नाल दे रियल्टर ने, प्लीज डोंट डू दैट डिजास्टर। अपनी ऑलरेडी कमीशन जहां पहले भाई साहब ने किया, गिरीश जी ने, कमीशन ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है, और ज्यादा लालच मत करो। तुम्हारी कमीशन के चक्कर में तुम्हारी नेगोशिएशन बिल्डर से खराब हो जाएगी। उसको बोला जी मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, जो मुझे मिल रही है, अब बताओ मेरे क्लाइंट को क्या देते हो इंसेंटिव्स, तो उसमें आपकी नेगोशिएशन बढ़ जाएगी। जब तुमको अगर 10,000 की लालच दे रहा है, तुम हो सकता है 30-40,000 तक भी नेगोशिएशन कर लोगे, क्योंकि जो तुम्हें कमीशन ज्यादा दे रहा है वो दूसरी तरफ क्लाइंट को मार रहा है। तो क्लाइंट को इंसेंटिव दिलाओ, इसके लिए मेरी होती है, मैंने लोगों को 1-1 लाख तक के इंसेंटिव दिलवाए हैं, और अभी मेरी रोज उनसे मीटिंग चल रही है। प्लीज जल्दबाजी मत करो, मेरे को मिलो। इंसेंटिव्स वाले प्रोजेक्ट अलग है जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, और
उसका अलग एक तरीका है। और जो भी लॉन्च हुआ उसमें तो अभी कमाल कर दिया M6 ने, जो M6 अभी लॉन्च हुआ है, इसने एक तरफ से इंसेंटिव डाल के ही प्राइस निकाल दिया, क्योंकि अभी न्यूली लॉन्च था तो उसको अलग से इंसेंटिव की जरूरत नहीं थी। उसने प्राइस के अंदर बड़ा जबरदस्त प्राइस लेकर आ गए, प्लस क्लोजिंग उन्होंने 6 साल की कर दी, पेमेंट 3 साल की कर दी, ब्ला ब्ला ब्ला, उनके डेवलपमेंट चार्जेस बड़ा जबरदस्त उन्होंने कर दिए। तो एक तरफ से ये ऑलरेडी इंसेंटिव इंक्लूडेड थे और ये प्रोजेक्ट बड़ा कामयाब रहा। जितना रिलीज हुआ सारा बिक गया, बल्कि और मैंने उनसे 5-7 मांगे हैं और मिल भी रहे हैं, मैं अपने क्लाइंट्स को दे भी रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए आप हमें मिल सकते हैं, जल्दबाजी मत करिए। 6472994757 और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। जी जी मैं एक बार फिर दसूंगा कि हर वेंसडे शाम 6:30 बजे, हर वेंसडे शाम 6:30 बजे चैनल वाई ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੀਕੇ ਸਬਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਕਜ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵੈਂਸਡੇ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੋਜਰ 857 ਬੈਲ 828 ਟੈਲਸ 2418 ਹਰ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੀਕੇ ਜੀ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੰਕਜ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू वेरी मच। ਥੈਂਕ ਯੂ।